اللهم صل على محمد وآل محمد. تقریباً 2 مہینہ 7 دن ہو گئے ہم لوگوں کو غم حسین مناتے ہوئے، اور یہ عبادت ہے کہ جس کا مرتبہ کیا ہے ہم آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اگر اس کی منزلت کوئی سمجھتا ہے، اس کا کوئی درجہ سمجھتا ہے تو وہ اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں کہ جو اس کی عظمت کو بیان کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے لیے جب غم مناتے ہیں، اہل عرفان کہتے ہیں کائنات حسین کے صدقے میں ہے اور حسین خدا کے لیے ہے، تو اب کائنات میں جو بھی ہوگا وہ خدا اگر انجام دے گا تو حسین کے لیے انجام دے گا۔ تو جس طریقے سے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج پہ جانا عبادت ہے، اسی طریقے سے فرش ادا پر آنا بھی عبادت ہے۔ اور فرش ادا پر جس طریقے سے نماز میں کہا جاتا ہے جب تک عبادت ہو ادھر ادھر نہ دیکھے، آپس میں گفتگو نہ کرے، اپنے خیالات کو مصلی سے دور چھوڑ کر آئے، تو فرش ادا پر بھی آنے سے پہلے تمام باتوں کو وہیں چھوڑ کر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاک جگہ ہے، یہاں پر دلوں کو پاک کر کے آیا جاتا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں چونکہ صدائیں ایسی لگ رہی تھی، لہذا یہ سمجھ میں آیا کہ یہاں آنے سے پہلے وہیں ختم کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، یہ عبادت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ عبادت انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں ہے کہ نماز انسان جب پڑھتا ہے تو گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، تو پھر فرش ادا پر آنا یہ جب عبادت ہے تو ایسی صورت میں ہمیں گناہوں سے محفوظ رہنا چاہیے، ہمیں غلط چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم مجلسوں میں آتے تو ہیں لیکن پھر بھی گناہوں سے دوری نظر نہیں آتی؟ یا 2 مہینہ 8 دن تک کے ہم پروگرام تو کرتے ہیں لیکن جیسے پہلے دن تھے ویسے ہی الوداعی تاریخ تک رہتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ مجلسوں میں کوئی اثر نہیں ہے، فرش ادا پر آنے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے عزیزو، فرش ادا میں تاثیر ہے، مجلسوں میں تاثیر ہے، ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم لے پائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثال دے رہے ہیں صرف ذہن کو قریب کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے سمندر آپ نے دیکھا ہے، چونکہ ممبئی میں رہتے ہیں، جو ممبئی میں رہتا ہے وہ سمندر جانتا ہے سمندر میں کتنا پانی ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ سمندر میں، اور پانی کا سوال آپ کر رہے ہیں، پانی ہی پانی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ایک کٹورا یا ایک ظرف سمندر میں ڈالیں تو پانی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہاں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کٹورا کھلا ہوا ہے، ظرف کھلا ہوا ہے، آپ چاہیں گے تو پانی ڈال کر، کٹورے کو ڈال کر پانی لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں ایک شیشی لوں اور لینے کے بعد اس کے اوپر کا جو کور ہے وہ لگا کر سمندر میں ڈالوں اور 2 گھنٹہ چھوڑنے کے بعد وہ شیشی نکالوں تو کیا پانی آئے گا؟ کہیں گے نہیں۔ تو بھائی کیا سمندر کے اندر پانی نہیں ہے جو پانی شیشی میں نہیں آ پا رہا ہے؟ کہا نہیں، سمندر میں پانی ہے لیکن شیشی نے اپنے کور کو خالی نہیں کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر پانی لے سکے۔ تو فرش ادا میں بھی برکتیں ہیں، فرش ادا پر آنے میں ترقی ہے، لیکن کب ہے؟ جب معرفت کے دروازے کھول کر آپ یہاں آؤ گے۔ لیکن اگر گناہوں کا ڈھکن لگا کر اس جگہ پر آؤ گے تو پھر کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ کہیں گے کہ نہیں، اگر آپ معرفت کے دروازے کو بند کر کے بھی آئیں گے تو تاثیر ایسی ہے کہ زیادہ آنے سے پھر وہ معرفت بھی آ جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ اثر آ جائے کہ آپ پھر کھنچ کر آنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یاد رکھیے سمندر میں جب شیشی کو ڈالا جاتا ہے
ٹھیک ہے اندر پانی نہیں آیا لیکن شیشی پھر بھی گیلی ضرور ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے فرش اعلیٰ پر آنے کے ذریعے سے ہو سکتا ہے دل نرم پڑ جائے اور آئندہ کے لیے آپ آمادہ ہو جائیں. تو یہ کہنا کہ فرش اعلیٰ میں برکتیں نہیں ہیں، نہیں، فرش اعلیٰ میں برکتیں ہیں، ہم ان معرفت کے ساتھ نہیں آتے ہیں. اور یاد رکھیے یہیں سے اس چیز کو میں اشارہ کرتا چلوں، ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے ذہنوں میں میں بچپنے سے دیکھتا چلا آیا ہوں کہ رمضان پورے مہینے انسان روزہ رکھتا ہے اور عید کے دن پھر اتنے گناہ کرتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے کہ سب کچھ جو 3 دن اس نے نہیں کیا تھا کرنا چاہتا ہے. تو اب 2 مہینہ 8 دن تک کہ ہم نے اپنے آپ کو جو محفوظ رکھا ہے، کیونکہ فرش اعلیٰ پر آتے تھے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے، گناہوں سے دوری اختیار کی ہے. تو اب الوداعی مجلس کر کے پھر ایسا نہ ہو جائے اسی وادی میں چلے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے اہل عرفان کا کہنا ہے کہ گناہ ہمیشہ گناہ ہے. کیا کہا؟ گناہ ہمیشہ گناہ ہے، چاہے خوشی کے موقع پر کرو چاہے غم کے موقع پر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی کا احترام ضروری ہے. اگر بھائی کا احترام نہیں کر رہے ہو تو اسلام نے منع کیا ہے. اسلام نے جب روکا ہے کسی کی توہین کرنا تو چاہے خوشی کے موقع پر توہین کرو تو بھی توہین ہے، چاہے غم کے موقع پر کرو تب بھی توہین ہے. تب ایسا نہیں ہے کہ عید زہرا اگر آ رہی ہے تو اب ہم تمام چیزوں کو چھوڑ کر فرش اعلیٰ کے تقدس کو چھوڑ کر اپنی اسی گناہوں کے وادی میں چلے جائیں. تو گناہ کل بھی گناہ تھا، گناہ آج بھی گناہ ہے، گناہ عید زہرا کے موقع پر بھی گناہ ہے. اور وہ عید ہی نہیں ہے جس دن گناہ ہو جائے. اس لیے کہ معصوم نے کہا ہے عید اس دن کو کہتے ہیں جس دن انسان سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے. تو اللہ نے اگر ہمیں عید بنا کر دیا ہے عید زہرا کو تو ہم اسے عید رہنے دیں، گناہ کر کے اسے عید سے نکال کر معصیت کی وادی نہ بنائیں. صلوات پڑھ دے پر محمد محمد وعلى محمد. تو عزیزو چونکہ یہ تمہیدی گفتگو تھی، آج جس کی شب شہادت ہے جسے ہم امام حسن عسکری کہتے ہیں، محمد وعلى محمد. آپ ہی کا ایک فکرہ میں نے اپنے لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے. معصوم ارشاد فرماتے خصلتان، 2 صفت، لیس فوقہما شیء، اس صفت سے اچھی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے، یعنی اس سے اوپر کوئی اچھی عادت نہیں ہو سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ 2 چیزیں، ایک الایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان رکھنا، دوسرے نفع الاخوان، بھائیوں کو فائدہ پہنچانا. دیکھیے 2 چیزیں، ہم دن آتے ہیں مناسبتیں آتی ہیں لیکن اسی طریقے سے گزار دیتے ہیں. جب اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم جس ایمان کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے والد ماجد کے ایک قول سے تو اپنے آپ کو جاتے جاتے قریب کر کے چلے. کیوں؟ اس لیے کہ ایام یادہ ختم ہو رہے ہیں. تو معصوم نے کیا کہا؟ خصلتان، 2 صفت، لیس فوقہما شیء، ان دونوں صفت سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. ایک الایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان رکھنا، دوسرے نفع الاخوان، بھائیوں کو فائدہ پہنچانا. یہ 2 چیزیں ہیں. اب میں یہاں پر آنے کے بعد پہلے ایک فضا قائم کرنا چاہ رہا ہوں. یاد رکھیے امام سید سجاد علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، فرش اعلیٰ پر آتے ہیں تو ان چیزوں کو سننے کا موقع ملتا ہے. کہتے ہیں خطبہ شام، خطبہ کوفہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا. سید سجاد نے جو خطبہ دیا ہے اس میں اس خطبے کا جو خلاصہ ہے اس میں کچھ چیزیں سید سجاد بیان کرتے. کہتے کیا ہیں؟ کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ نے صرف ہم سے مخصوص کر رکھی ہے، وہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی ہے. وہ کیا کہتے؟ کہتے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں صفت علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں علم سے نوازا ہے. یہ دوسروں کے پاس نہیں ہے، علم ہمارے پاس ہے، اور جتنا علم ہمارے پاس ہے اتنا دنیا والوں کے پاس نہیں ہے. اسی وجہ سے امیر کائنات کہتے ہیں کہ بار الہ تیری تقسیم پر ہم راضی ہیں، تو نے ہمارے لیے علم رکھا، ہمارے دشمنوں کے لیے جہل رکھا ہے.
अब आप सोच लीजिए कि मौला अगर किसी चीज पर खुश होते हैं तो जहालत पर नहीं बल्कि इल्म पर खुश होते हैं। अब अगर चाहते हैं कि मौला के करीब हो जाइए तो अपने आप को इल्म से मुज़य्यन करते चले जाएं, अपनी नस्लों को इल्म से करीब करते चले जाएं ताकि मौला हमसे खुश हो जाए। और मौला इल्म पर खुश होते हैं क्यों? इसलिए कि इल्म वो मरहला है जिसकी बुनियाद पर इंसान को तरक्की मिलती है। इल्म वो मरहला है जिसकी बुनियाद पर इंसान को सुकून मिलता है। इल्म वो मरहला है जिसकी बुनियाद पर इंसान आगे बढ़ता है। इल्म वो मरहला है जिसके जरिए से नई नई चीजें इंसान ईजाद करता है। तो अगर इंसान टेक्नोलॉजी की दौड़ में है तो फिर बगैर इल्म के टेक्नोलॉजी नहीं आती है। तो अगर अपने आप को दुनिया वालों से पीछे नहीं रखना चाहते हो तो अपने आप को इल्म से करीब करते चले जाओ। और ये सिफत ऐसी है जो अल्लाह ने अहले बैत को देकर रखी है। इसी वजह से आप आते देखे अहले बैत ने कहा है इल्म के मरहले को जो बयान किया है तो मौला कायनात क्या कहते हैं? सलूनी सलूनी कबलान तब के पूछ लो कब इसलिए कि तुम मेरे पास से चले जाओ। अली ने ये नहीं कहा मैं चला जाऊं, क्योंकि अली के लिए इंतकाल का तसव्वुर नहीं है। हम इस दुनिया से चले जाएंगे। अली कल भी था, अली आज भी है, अली कल भी रहेगा। तो इल्म अली इससे खुश होते हैं। तो अपने बच्चों की पहली सिफत है कि जिसके बारे में सैयद सज्जाद कहते कि अगर ये सिफत है किसी के अंदर तो ये समझो कि ये सिफत हमारी सिफत है जो इंसानों के अंदर पाई जाती है। क्यों? इसलिए अल्लाह ने ये सिफत हमें दे रखी है। दूसरी सिफत शुजाअत है। ये चूंकि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक लाना चाह रहा हूं अभी। तो दूसरी सिफत अल्लाह ने किसको दी है? देखिए ये अज़ान हो रही है और अज़ान भी जब सैयद सज्जाद ने खुतबा दिया था तो हुई थी, लेकिन याद रखिए वहां पर आकर बहस होती है कि आया अज़ान थी या नहीं थी। तो मैं दलील दे दूं कि यह अज़ान नहीं थी। क्यों? इसलिए कि क्या सैयद सज्जाद को पता नहीं था कि वक्त नमाज हो गया है या नहीं हुआ है? और अगर सैयद सज्जाद को पता है वक्त नमाज हो चुका है तो सैयद सज्जाद खुतबा नहीं बल्कि नमाज देंगे। या यूं कह दे बल्कि ये चूंकि माहौल चल रहा है वहीं तक मैं आपको ले जाकर पहुंचाना चाह रहा हूं, अभी को दलील देना चाह रहा हूं। या यूं कहते सैयद सज्जाद खुतबे में उस मरहले तक ईमानों को लाकर पहुंचाना चाहते थे ताकि फिदा ऐसी बन जाए कि यजीद के दरबार में आके परचम तौहीद को लहरा दे। क्यों? कि यजीद ये चाहता था तौहीद खत्म हो जाए, यजीद ये चाहता था रिसालत मिट जाए, यजीद ये चाहता था कुरान मिट जाए। इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने खुतबा ऐसा दिया, माहौल ऐसा बना कि अज़ान अपने आप शुरू हो गई। और उसके बाद सैयद सज्जाद रुके नहीं बल्कि सवाल किया, बताओ ये जो आवाज आ रही है इसमें ऐलान किस बात का है? कहा तौहीद का है, कहा अल्लाह को मानते हो या नहीं मानते हो? कहा मानते हैं, कहा ये रिसालत है या नहीं है? क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह का ऐलान किया गया। कहा ये बता तेरा जद है या मेरा जद है? सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो कभी कभी अज़ानें भी किसी मसलहत और किसी हकीकत की जानिब इशारा करने के लिए होती हैं। और इमाम भी जब आएंगे तो एक आवाज देंगे। ये आवाज दावत होती है इंसान को मुसल्ले के करीब लाने के लिए। तो इमाम भी जब आएंगे तो दावत देंगे और आवाज देंगे तो आपके चाहने वाले लब्बैक कहते हुए जाएंगे, क्योंकि आखिरी इमाम का कल ताजपोशी है। और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जाते जाते दावत दे के जा रहे, देखो याद रखो मेरे बाद आने वाला मेरा बेटा जानशीन है, तुम्हें उसी की बात पर लब्बैक कहना है। तो ये आवाजें बुलंद होकर बता रही है कि किसी अजीम का तज़किरा हो रहा है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो दूसरी सिफत कहते हैं कि शुजाअत है। अहले बैत कहते हैं ये सिफत अल्लाह ने हमें दे रखी है, ये किसी और के पास नहीं है। और मैं दलील भी दे सकता हूँ कि बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम जब लिया जाता है घोड़े पर सवार हो जाते हैं लेकिन घोड़ा भाग जाता है। जो घोड़े को अपने इख्तियार में नहीं कर सकते हैं वो इमामत और खिलाफत के ओहदे को कैसे संभाल पाएंगे? लिहाजा अहले बैत कहते हैं कि शुजाअत अल्लाह ने हमें दे रखी है। और इसी वजह से आप याद रखिए अमीर कायनात के बारे में मिलता है, सिर्फ जहन करीब ले जाना चाह रहा हूं आपको। अभी लोग जब इस दुनिया में आए हैं अमीर कायनात
بچوں کو جب اس دنیا میں آتے ہیں بچے تو مائیں کرتی کیا ہے؟ اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھتی ہے. کہتے جتنا بچے کو کپڑے میں لپیٹا جائے گا اتنا زیادہ اس کے بدن مضبوط ہوتے ہیں, اس کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں. اللہ سب کو نعمت اللہ سے نوازے. کہتے ہیں یہ روایات کے فکر ہے. جب امیر کائنات اس دنیا میں آئے, آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے کو کپڑے میں لپیٹ کے رکھا اور کسی کام سے چلی گئی. پلٹ کر آ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ علی نے کپڑے کو پھاڑ دیا ہے. تو ماں نے سمجھا کہ یہ اتفاق ہے. پھر دوسرا کپڑا لیا اور لینے کے بعد لپیٹ دیا, لیکن پھر آ کے دیکھا تو علی نے کپڑا پھاڑ دیا. پھر کپڑا بدل دیا. تیسری مرحلے میں آ کر جناب فاطمہ بنت اسد نے پھر علی کو کپڑے میں لپیٹا ہے. میں شجاعت بیان کر رہا ہوں. علی کو کپڑے میں لپیٹ دیا, علی نے پھر کپڑا پھاڑ دیا. یاد رکھیے ایک مرتبہ اگر کوئی عمل ہوتا ہے تو اسے اتفاق کہا جاتا ہے, لیکن بار بار جب ہوتا ہے تو وہ اتفاق نہیں ہوتا ہے. واقعات ملتے ہیں, تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ماں نے کپڑا بدلا, علی نے کپڑا پھاڑا. ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, 7 مرتبہ علی نے کپڑے کو پھاڑا ہے. مولا ہم نے جب بھی روایتوں میں سنا ہے, قرآن میں سنا ہے, یا 70 کہا جاتا ہے یا 3 کہا جاتا ہے. 3 مرتبہ ایسا کر لو, 4 مرتبہ ایسا, یہ 7 کا عدد کیسا ہے؟ تو عجب نہیں. مولا بتانا چاہ رہے دیکھو تم نے دعائے مسنون پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ دعائے مسنون پڑھی ہے. جو انسان کے اعضاء بدن کے ہلنے لگتے ہیں, راسو پڑ جاتا ہے, تو اس دعا کو پڑھ کے انسان اپنے آپ کو اس بیماری سے بچاتا ہے. اس دعا کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں 7 مرتبہ بہی 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 آیا ہے. میں شجاعت کو بیان کر رہا ہوں. تھوڑا سا اپنے ذہن کو قریب لے کے چلیے گا. پھر اس لیے تو دعاؤں کے ذریعے سے قریب لے جانا چاہ رہا ہوں. 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 7 مرتبہ بہی بہی بہی. جب اہل عرفان نے آ کر ان کی وضاحت کی ہے, تفسیر کی ہے کہ 7 مرتبہ بہی بہی کیوں کہا گیا, کہتے ہیں ائمہ جو شہادہ معصومین ہے ان کے ناموں کو جو تکراری ہے, جیسے علی ہے, پہلے امام کا نام علی ہے, چوتھے امام کا نام بھی علی ابن الحسین ہے. یہ جب 2 ہے تو اس کو 1 کر دو, تو جو تکراری نام ہے اسے نکال دو تو پھر 7 بچتے ہیں. تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں ان 7 کا واسطہ دے کر اگر آؤ گے, یا یوں کہتے ہیں 14 لوگوں کا واسطہ دے کر آؤ گے تو تمہارے بدن کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. تو آپ سمجھ میں آیا کہ بہی بہی ہے تو 7 مرتبہ, لیکن اشارہ ہے ائمہ اہل بیت کی جانب. امیر کائنات نے بھی 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 7 مرتبہ کپڑا پھاڑ کے بتانا چاہا ہے. دیکھو جیسا پہلا علی شجاعت رکھتا ہے ویسے ہی دوسرا علی بھی شجاعت رکھتا ہے, ویسے ہی تیسرا علی بھی شجاعت رکھتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وعلى صلی یہ صفات ہے جو اہل بیت کے اندر پائی جاتی ہے. تیسری صفت کیا ہے؟ کہتے ہیں بلاغت و فصاحت. فصاحت و بلاغت کیا کہتے ہیں؟ کہتے جیسا ماحول ہو, جیسے سننے والے ہو ویسے گفتگو کی جائے. اہل بیت نے ہمیشہ مخاطب کو دیکھ کے گفتگو کی ہے. سامنے والا جیسا ہوتا تھا ویسی گفتگو کی ہے. کبھی کوئی آیا توحید کے بارے میں سوال کرنے کے لیے تو معصوم نے آسمانی دلیل دی, کبھی کوئی سوال کرنے کے لیے آیا تو معصوم نے زمینی دلیل دے دی. مولا یہ کیا کہا, آنے والا اگر عالم ہوتا ہے تو دلیل دی جاتی ہے, آنے والا اگر بہت زیادہ جانکار نہیں ہوتا ہے تو مثال دی جاتی ہے. اسے فصاحت و بلاغت کہا جاتا ہے. یعنی جیسا موقع ہو, جیسا مخاطب ہو ویسی ہی گفتگو کی جائے, اسے فصاحت و بلاغت کہا جاتا ہے. اب یہیں پہ سمجھ میں آتا ہے سید سجاد نے یا جناب زینب نے جو خطبہ دیا ہے کتنا زیادہ فصاحت و بلاغت رکھتے تھے کہ آج نہ اپنی فضیلت کو بیان کرنا ہے, نہ آج کسی بات کو بیان کرنا ہے, بلکہ توحید کے نعرے کے لیے کربلا سبحان اللہ وہ پذیر ہوئی تھی. لہذا آج اذان دلوا کر اعلان توحید کرایا جائے گا تاکہ یزید کے دربار میں آ کے بتا سکے تم نے چاہا تھا تکبیر ختم ہو جائے, ہم نے تیرے دربار میں آ کے نعرہ تکبیر لگوا دی. صلوات پڑھ دے بر محمد وعلى صلی اللہ محمد وعلى محمد. یہ فصاحت و بلاغت ہے. چونکہ موقع اور محل نہیں ہے کہ میں ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کروں, چونکہ نہ ذہنی طور پر آپ آمادہ ہے, نہ ذہنی طور پر میں آمادہ ہوں, چونکہ میں اس طریقے سے آتا ہی نہیں ہوں. لیکن فرش آدھا کبھی سونی نہیں رہنا چاہیے. اس وجہ سے
हाजिर हो गया। लेकिन याद रखिए, बातें हैं, मैसेज है जो देना है। तो दो सिफतें बयान की, तीसरी सिफत के बारे में बयान कर रहा हूं। क्या है भाई? कहते हमारे पास फसाहत व बलागत पाई जाती है, ये हमारे पास है। लिहाजा याद रखिए कि अली ने जो बोल दिया है, दुनिया रिसर्च करती खत्म हो जाएगी जिंदगी, लेकिन उसके मानी को आखिरी मरहले तक जाकर समझ नहीं सकते हैं। तभी तो दुनिया वाले आके कहते हैं आज हमने जो भी सीखा है या कुरान से सीखा है या नहजुल बलागा से सीखा है। और यहीं से वो जुमला कह दे कि अल्लाह की जानिब से दो कुरान आया, एक कुरान नातिक और एक कुरान सामित, एक बोलता हुआ कुरान, एक खामोश कुरान। बोलता हुआ कुरान अहले बैत है, खामोश कुरान कौन है? जो हम आप पढ़ते हैं, जब मर जाता है कोई तब पढ़ते हैं। जबकि करबला में हुसैन ने यही बताना चाहे, बल्कि आखिरी रात में जब मोहलत ली है तो सबकी आवाजें आ रही थी, ऐसा लग रहा था कुरान की तिलावत हो रही है। या यूं कहते हुसैन ने जाते जाते भी लोगे मैदा पर तिलावत करके बता दिया कि कुरान ऐसी किताब है सिर्फ जिंदगी में मरने के बाद भी पढ़ी जाती है। सलवात पढ़ देगा मोहम्मद वाले। ये अलग बात है कि हुसैन के लिए मरना तसव्वुर नहीं है, बल्कि अल्फाज को बदल दे कि दुनिया जहां पर मौत तसव्वुर करती है, हुसैन ने कुरान पढ़ के बता दिया कि हयात पाई जाती है। तो तुम्हें भी अगर समाज समझे, दुनिया वाले समझे कि मुसलमान मर चुके हैं, मुर्दा जमीर हो चुके हैं, तो तुम पुरानी पैगाम को आम करते चले जाओ, तुम्हारा समाज जिंदा होता चला जाएगा। अगर हमने अपने आप को कुरान से दूर कर लिया है तो दूसरी कौमें हमारे ऊपर कब्जा करती चली जाएंगी। सलवात पढ़ देगा मोहम्मद वाले मैंने कहा दो कुरान है, एक कुरान सामित, एक कुरान नातिक। अली ने भी जाते जाते दो कुरान दिया है, एक बोलता हुआ कुरान, एक खामोश कुरान। कहेंगे ये कैसे हो सकता है? कहा हाँ सुनिए, तारीख उठा के देख लीजिए। अली ने एक खामोश कुरान दिया है जिसे नहजुल बलागा कहते हैं, और अली ने एक बोलता हुआ कुरान दिया है जिसे ज़ैनब कहते हैं। सलवात पढ़ देगा मोहम्मद वाले। तो ये सिफात है जिसे मासूम कहते हमारे अंदर पाई जाती है। इसी तरीके से आप जाइए, बहुत सी सिफात है जिसे सिफाते बंदगाने इलाही कहा जाता है। चूंकि मैं बातों को समेट रहा हूं अभी को, बंदगाने इलाही कहा जाता है, सिफात इबादुर रहमान कहा जाता है। उन्हीं सिफात में से सिफत है जिसे ईमान कहा जाता है। इमाम ने क्या कहा है? खसलतान, दो सिफतें हैं, इससे ऊपर कोई सिफत नहीं हो सकती। एक अल ईमान बिल्लाह, अल्लाह के ऊपर ईमान रखना, दूसरे भाई को फायदा पहुंचाना, ये सिफत भी अजीम है। मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा में मोमिनीन की सिफात क्या होती है बयान कर दी है। अगर मौका मिले रमजान में किराते होती है तो उसमें आइए, मुनाफिक की सिफत क्या होती है मौला ने वो भी बयान किया है, मोमिन की सिफात क्या होती है वो भी बयान किया है। आए उन सिफात को अपनी जिंदगी में उतारते चले जाए ताकि हम मानने वाले किसके हैं? अमीरुल मोमिनीन या कुल्ले ईमान के मानने वाले हैं। याद रखिए, कभी भी मैग्नेटिक पावर आपने देखा है, ये जो चुंबक होता है जिसे नकातीस कहा जाता है, ये कभी स्टील को नहीं खींचता है, कभी लकड़ी को अपनी तरफ नहीं खींचता है। किसे खींचता है? जो लोहा होता है उसे खींचता है। यानी सिलसियत पाई जाना चाहिए। कहते कुल्ले अमीरुल मोमिनीन कुल्ले ईमान है, तो उसकी तरफ कौन खींच के आएगा? जैसे मकातीस के पास न लकड़ी खींच कर आती है, न पत्थर खींच कर आता है, बल्कि लोहा खींच कर आता है। ये कुल्ले ईमान जिसे नूर कहा जाता है, अपने दिल में नूर ईमान उतार लो। जब सिलसियत आ जाएगी तो अपने आप कुल्ले ईमान के करीब होते चले जाओगे। सलवात पढ़ देगा मोहम्मद वाले। आप कहेंगे कि आपने बात तो कह दी, दलील क्या है? देखिए, किसी भी इंसान के ईमान के दर्जे के बारे में गुफ्तगू नहीं हुई है, लेकिन दो आदमियों के बारे में मिलता है जिसके ईमान के दर्जे को बयान किया गया है। एक सलमान है, एक अबू बकर है। इन्हीं के ईमान के दर्जे को बयान किया गया, नहीं बयान किया है। कहते एक 9 दर्जे पर फायद है, एक 10 दर्जे पर फायद है। ये कैसे दर्जा बताया जाए? कहा चूंकि कुल्ले ईमान के करीब होकर आ गए हैं, तभी तो समझ में आया कि कितना ईमान पाया जाता है। या सलमान और अबू बकर ने बताना चाहा है कि अली के साथ
चले जाओगे या ईमान मजबूत करते चले जाओगे, अली के करीब होते चले जाओगे। लिहाजा अहले इरफान कहते हैं जब एक मौका आया, अली की आंखों में डर था, सहारा देकर लेकर आ रहे थे। एक तरफ से सलमान फारसी है, एक तरफ से अबू जर गफ्फारी है। कहते जब ये दोनों लेकर चले हैं तो कहने वाले ने कहा अजीब मंजर नजर आ रहा है। एक तरफ 9 दर्जे का ईमान, एक तरफ 10 दर्जे का ईमान, और बीच में कुल्ले ईमान नजर आ रहा है। सलवात पर देगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ईमान बहुत जरूरी है। ऐसी सिफत है कि जो इंसान के पास जितना ज्यादा मजबूत ईमान होगा उतना ही ज्यादा इंसान अपने आप को गुनाहों से दूर रखेगा। लिहाजा एक वाकया इमाम हसन यासरी के जमाने का मिलता है, आपके एतबार से बयान किया जाता है। बाद रिवायात में कहते हैं एक बनाया हुआ वाकया है, हमें वाकये से नहीं लेना देना है, जो मैसेज है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कहते एक बादशाह था, बादशाह के जमाने में 2 फकीर थे। दोनों आदत ये थी कि जब बादशाह या बादशाह के कारिंदे चलते थे तो आगे बढ़ के वो फकीर बादशाह की बड़ी तारीफ करने लगता था, जिसे हम अपनी जबान में कहते हैं चापलूसी। होता नहीं है, आप देख लीजिए ये इलेक्शन का जमाना जब आता है तो हम किसी के करीब होने के लिए कितना तारीफ करते हैं, या बात मौके पर कोई ओहदेदार होता है तो हम उसकी तारीफ करते हैं ताकि वो हमारे साथ रहे, हम उसके साथ रहे। इसे चापलूसी। देखिए याद रखिए, कभी भी कुछ सिफत की तारीफ कीजिए जो इंसान के अंदर है, अगर नहीं है झूठ मत बोलिए, ये इस्लाम को पसंद नहीं है। कहते ये जो फकीर था इसकी आदत क्या थी, कहते जैसे ही बादशाह को देखता था फौरन तारीफ करना शुरू कर देता था, उसके कारिंदे को देखता था फौरन तारीफ करना शुरू कर देता था। जो कुछ भी है आप ही से है, जो कुछ मिलता है आप ही से मिलता है, इतनी खुशहालियां आपके वजूद से है। लेकिन दूसरा फकीर ये था, वो कभी तारीफ नहीं करता था, बल्कि जब उससे आके पूछा जाता था तो तुम क्यों नहीं बयान करते हो, तुम कुछ क्यों नहीं कहते हो, तो कहता है जो कुछ भी अच्छाइयां है वो खुदा की वजह से है, इसकी वजह से थोड़ी ना हो। जो कुछ भी है वो किसकी वजह से, खुदा की वजह से, इसकी वजह से नहीं है। सुनने वालों ने सुना तो ये बात बादशाह तक पहुंचा दी। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, कहा अच्छा ये तारीफ मेरी नहीं करता है, खुदा के, और खुदा के बारे में कहता है तमाम अच्छाइयां खुदा के अंदर है, जो भी मिलता है खुदा के पास से। तो इसने एक मछली तैयार की और उस मछली के अंदर एक बड़ा जमरूद या बड़ा कीमती पत्थर रखवा दिया, और रखने के बाद कहा उसे ले जाओ, और ले जाने के बाद जो मेरी तारीफ करता है उसे दे देना। समझिएगा कि ईमान जितना मजबूत होता है, जब अल्लाह के ऊपर ईमान रखेंगे तो अल्लाह कभी आपको तनहा नहीं छोड़ेगा। आज हम जो पीछे हो रहे हैं वो ईमान की कमजोरी की बुनियाद है। जिनका ईमान मजबूत है ना तो वो नसरुल्लाह बनते हैं या हुमैनी बनता है। दुनिया की ताकतें कमजोर हो जाती है, ईमान वो भी तो हमारी ही तरह इंसान है। कहा देखने में उनके पास भी 2 हाथ है, देखने में हमारे पास भी 2 हाथ है, देखने में उनके पास भी जिस तरीके से हम खाते हैं वैसे ये भी खाते हैं, उनका बदन भी ऐसे ही है, हमारा बदन भी ऐसे है। फिर कैसे है कि हम अपने एरिया में एक थोड़ा सा बॉडी बिल्डर मिल जाता है तो भाग जाते हैं, लेकिन ये ऐसा है कि कायनात की ताकतें मिलाने थक जा रही है लेकिन इसके बयान में तब्दीली नहीं आ रही है। कहा दलील ये है अल ईमान बिल्लाह है, और क्यों ना हो, क्योंकि कुल्ले ईमान से अपने को मिला दिया है। जो कुल्ले ईमान से मिला देगा उसका ईमान इतना मजबूत हो जाएगा कि आने वाले आप रहे अपना रास्ता बदल देंगे लेकिन इसके बयान में कोई तब्दीली नहीं आएगी। सलावत पढ़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जिस तरीके से उसे खबर दी गई थी, उसने मछली दी, मछली देने के बाद उसने 3 पत्थर रखा, कहा जो मेरी तारीफ करता है, मेरी मदद करता है, उसको ले जाके दे दो। ताकि उसका मकसद ये था कि जब मेरी तारीफ करता है तो उसे इतनी दौलत दे दी जाए कि उसे मांगने की जरूरत ना रहे, और जो मेरी तारीफ नहीं करता है उसका दिल भी टूट जाए कि देखो हमने गलती की कि तारीफ क्यों नहीं की। जब मछली आई है, मछली आने के बाद उस चाहने वाले को जो चापलूसी करता था दिया गया, तो उसके पास खाने के लिए पहले से खाना आ चुका था। समझिएगा
ईमान की मजबूती को। कहते खाना आ चुका था, उसने पेट भर के खाना खा लिया, लेकिन ये होशियार था, जिससे चापलूसी करता था, थोड़ा सा दही का इस्तेमाल करता था। उसने बाजू वाले फकीर को देखा जो बादशाह की तारीफ नहीं करता था। कहता तुमने अभी खाना नहीं खाया है, मैंने खाना तो खा लिया है, लेकिन मेरे पास एक मछली आई है, अगर 2 दीनार दे दो ये मछली मैं तुम्हें दे दूंगा। समझिएगा अभी तो ईमान कितना मजबूत होता है। इसने एक मौका देखा, कहा जब तुम दुनिया के बादशाह को मान रहे हो और उसकी तारीफ कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग इतना चलता है, मैं तो खुदा को मानता हूँ जिसने अक्ल को पैदा किया है, तो क्या मेरा दहन कमजोर हो जाएगा? तो उसने क्या कहा, देखो तुम पेट भर चुके हो, तुम्हारा पेट भरा हुआ है और मछली बहुत ज्यादा दिनों तक या बहुत ज्यादा टाइम तक रखी नहीं जाती है, खराब हो जाएगी, लिहाजा अगर देना है दे दो, पैसा नहीं दूंगा। देना, यहाँ पर भी वो पैसा कमाना चाह रहा था, लेकिन इसने जब ये कहा तो एक मरतबा कहा कि अच्छा 1 दीनार दे दो, कहा नहीं हम दीनार नहीं देंगे। उसने कहा अच्छा ठीक है ले लो, खराब होने से अच्छा है कि हम तुम्हें दे दे। यही देखने को समझ में आ गई, कभी कभी राहे खुदा में लोग इसलिए दे देते हैं कि हमारे यूज में नहीं है, कभी कभी हम राहे खुदा में इसलिए दे देते अरे हमारे काम नहीं आ रही है। नहीं, हमेशा वो चीज दीजिए जो आपके काम रहे। ये अलग बात है, आप बेकाम को भी राहे खुदा में दे देंगे तो अल्लाह उसे आदीम बना देता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब कहा तो इसने न चाहते हुए भी वो मछली दे दी। इसने मछली को खाना शुरू किया, खाते खाते दरमियान में वो पत्थर आया, उसने उसे निकाल के अपने जेब में रख लिया और इससे हाथ मिलाने के बाद कहा अब मैं चलता हूँ, शायद फिर कभी मुलाकात हो। समझिएगा क्या कहा, शायद फिर कभी मुलाकात हो। ये चला गया। अब उसके बाद बादशाह ने जिसके लिए मछली भेजी थी, कुछ दिनों के बाद देखा अभी भी मांग रहा है, तो बादशाह गुस्से में आ गया, हमने तुझे इतना कीमती पत्थर दिया था, तेरी नस्लों को भी मांगने की जरूरत न होती, फिर तू मांग क्यों रहा है? उसे बुलाया गया और कहा तुझे हमने मछली दी थी, उस मछली में पत्थर दिया था, चूंकि तुम मेरी तारीफ करता था, कहा ये मछली तुमने दी तो थी लेकिन मैंने नहीं खाई, उस फकीर को दे दिया जिसका कहना ये था, जिसका कहना ये था जो कुछ भी अच्छा होता है खुदा करता है, इंसान क्या करता है। जैसे ही ये जुमला सुना है बादशाह ने इसे कहा इसकी गर्दन को उड़ा दिया जाए, चूंकि ये चापलूसी करता था लेकिन सामने वाले फकीर का ईमान इतना मजबूत था, वाकई जो करता है खुदा करता है। चाहता था मैं अपने चाहने वाले को आगे बढ़ा दूं, लेकिन खुदा ने चाह अपने चाहने वाले को आगे बढ़ा दे, वो वही रह गया और ये कहां पहुंच गया है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कब होगा? उस वक्त होगा जब ईमान मजबूत होगा। बस समझ लीजिए, क्योंकि मौला ने कहा यह फिक्रा कि 2 सिफत है जो बहुत अजीम सिफत है, जिनका ईमान मजबूत होता है वो मुश्किलात में ईमान कमजोर नहीं होने देते हैं। अब आइए करबला में आप आके देखिए क्या मिलता है। असहाबे हुसैनी है जिनका ईमान इतना मजबूत है, मौत की आके खड़ी हो जा रही है तो इनका ईमान कमजोर नहीं पड़ता है बल्कि मौत किनारे हो जाती है। ईमान मजबूत होना चाहिए। तो कहते हैं इस शख्स ने जब ये कहा कि खुदा जो करता है अच्छा करता है, तो ये मैसेज देना चाहता है कि ईमान मजबूत कर लो। हम ये समझते हैं कि खुदा के रास्ते पर चलेंगे तो नाकाम हो जाएंगे, नहीं, कामयाबी हमेशा उसकी इंतहा खुदा के दर पर होती है। हम कामयाबी कहीं और तलाश करते हैं, जबकि अल्लाह ने बताया कामयाबी हमारे रास्ते पर चलने में मिलती है। और न समझ में आए तो मैं इशारा कर दूं, करबला में 2 तरीके के लश्कर थे, जिस तरफ देखिए और जिस तरफ पे वहां पैसा भी था, वहां पानी भी था, वहां खाना भी था, लेकिन होर को उसमें कामयाबी नजर नहीं आई। जब छोड़कर हुसैन की तरफ आए हैं तो कामयाबी नजर आई है। यानी बताना चाह रहे हैं जिस रास्ते पर दुनिया वाले चल रहे वहां कामयाबी नहीं मिलती है। ईमान मजबूत करके कुल्ले ईमान के दामन में अपने आप को डाल दो, यहाँ पर भी कामयाब रहोगे, वहां पर भी कामयाबी मिलेगी। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने बात को समेटना चाहा है, चूंकि वक्त होता जा रहा है। ईमान जितना मजबूत होगा इंसान उतना ही कवि होगा।
हम समझते हैं कि ईमान और अल्लाह के रास्ते पर चलने की बुनियाद पर हम पीछे रह जाएंगे। नहीं, देखने में ऐसा लगता है कि हम पीछे चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने दौड़ में देखा होगा, कभी कभी लोग बहुत जल्दी आगे निकल जाते हैं लेकिन पीछे हो जाते हैं, लेकिन जो अपनी एनर्जी को लेकर बचाए हुए चलता है आखिर में वही पहले नंबर पर आता है। तो अल्लाह की राह में चलने वाले लगता तो है कि कछुए की चाल है, लेकिन कामयाबी हमेशा अल्लाह वालों को मिलती है। लिहाजा ये जमाना जो चल रहा है उसमें आप देख लीजिए कि दुश्मनान अहले बैत के चाहने वालों को खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन ईमान की मजबूती की बुनियाद पर वो रोज और चमकते हुए सितारे के तरीके से नजर आ रहे हैं। तो पहली सिफत है ईमान मजबूत करने। दूसरी सिफत कहते हैं अपने भाई को फायदा पहुंचाना। देखिए, नफ़्उल इख़वान कहते हैं भाइयों को फायदा, नफ़् यानी फायदा पहुंचाना। अब यहाँ पर हमारा समाज देख लिया, मौला का कौल देख लीजिए। होता क्या है, हमारा हमेशा मिजाज ये होता है, यहाँ पे ये नहीं कहा कि आपका हकीकी भाई हो, पहले ये चीज ध्यान में रखिए, बल्कि का भाई और ईमानी रिश्ते से एक रिश्ता होता है, साहिबान ईमान आपस में भाई भाई हैं। तो जब ईमान मजबूत हो जाएगा तो आपस में जिसके पास ईमान है वो आपस में भाई है। कहते हैं हमारा समाज क्या मौला की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। हमारा समाज ये है कि जितना हम भाई को दबा ले जाएं हम सबसे आगे निकल जा रहे हैं। जितना हम अजियत कर ले समझते हैं कि समाज में हमारी वैल्यू बढ़ रही है, जबकि मिजाज ये है, इस्लामी मिजाज ये है, नहीं तुम भी आगे बढ़ो और अपने भाइयों को भी आगे बढ़ाओ। मैंने शायद यहाँ के असर में भी सिर्फ इशारा किया था कि अहले बैत ने खुद भी कामयाबी के मदारिज को तय किया है और अपने चाहने वालों को भी ले गए हैं। यह करबला में आके देखे, हुसैन अजीम है लेकिन हुसैन ने अब्बास को दबाया नहीं है बल्कि बाबुल हुसैन बना दिया है। तो समझिए, भाई वो होता जो भाई को बुलंदी अता करे, भाई वो होता जो भाई को फायदा पहुंचाए। लेकिन हमारे समाज, यही से याद रखिए, कामयाबी ये नहीं है कि हम किसी के पैर को तोड़कर हम आगे निकल जाएं। कामयाबी ये है कि हम खुद भी तालीम रहे, अपने भाई के पैर को भी टूटने न दिया जाए। ये मासूम का रहमा क्यों, इसलिए कि हम जिसके जिक्र के लिए बैठे हैं वो जाते जाते हमें वक्त का इमाम देके जा रहा है, जिसे हम इंशाअल्लाह ये आप जश्न करेंगे तो पता चलेगा, जिसे ईद ज़हरा कहा जाता है। कहते हैं इमाम ज़माना की ताजपोशी होती है। तो झूठ के इमाम जा रहे हैं तो समाज बताते हुए जा रहे कैसा समाज बनाना है। देखो, अगर तुम चाहते हो कि इमाम के चाहने वाले बन सको, इमाम के लिए जमीना हमवार कर सको, तो ईमान को मजबूत करते जाओ और अपने भाइयों को फायदा पहुंचाते जाओ। इसलिए कि इमाम ज़माना जब आएंगे तो रिवायात में मिलता है, इमाम ज़माना जब आएंगे तो जिसको जितनी सलाहियत होगी उसी एतबार से वो अपने भाइयों को फायदा पहुंचाएगा। अब आप समझिए, मैसेज देना चाह रहे हैं इमाम जाते जाते कि याद रखो अपने भाइयों को फायदा पहुंचाओ, उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाओ। अगर ये दो सिफत हमने अपने अंदर पैदा कर ली तो याद रखिए हम हकीकी इमाम हसन अस्करी के चाहने वाले हैं। वरना सिर्फ तारीफ करेंगे, फज़ाइल बयान करेंगे, लेकिन हमारे अंदर तब्दीली नहीं आएगी। और जब हम अपने आप को ऐसा संभालेंगे, ऐसा बनाएंगे, तो कल जैसे हुसैन ने फख्र किया था कि जैसे मेरे दादा को वो असहाब नहीं मिले, मेरे नाना को नहीं मिले, जैसे मुझे असहाब मिले थे। तो अगर इस तरीके से ईमान मजबूत कर लिया जाए, क्यों, इसलिए तो वहां पर यही दोनों सिफत पाई जाती थी। अजीज, मैंने अपनी बात को समेटा, वहां पर भी ईमान बहुत मजबूत था और उसके बाद हर भाई दूसरे भाई को फायदा पहुंचाना चाहता था। लिहाजा इमाम यही बताना चाह रहे हैं कि देखो, तुम्हारे अंदर भी अगर ये सिफत हो जाएगी तो तुम भी इमाम ज़माना के हकीकी चाहने वालों में से हो जाओगे और तुम भी इमाम के लिए ज़मीना फराहम कर सकते हो। क्यों, इसलिए कि सिर्फ अलाजल कहना काफी नहीं है, बल्कि अलाजल अमल में आना चाहिए। वो कब होगा जब नेकियों के लिए हम जल्दी करेंगे, और ये कब होगा जब हम फर्श आगा पर आकर नेक बातों को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। तो इमाम क्यों, इसलिए हम कहते हैं खुदा इमाम को ज़ुहूर करने में देरी कर रहा नहीं, अल्लाह ने तो वक्त मुअय्यन कर दिया, हमें आमादगी करना है ताकि हम ईमान के लिए ज़मीना फराहम कर सके। हाँ, आगादारान मज़लूम करबला, ये दो सिफत मासूम ने जो जाते जाते कही है, इसको जितना मजबूत करेंगे उतना ही ज्यादा इमाम के चाहने वाले हो जाएंगे। इमाम कहते हैं कि रिवायात के फिक्रे मिलते हैं कि आपने अपनी जिंदगी में इमाम ज़माना को बाद मौकों पर पहचाना चाहा है। सिर्फ मैं इशारा कर रहा हूँ चूंकि मसाइल की जानब आ रहा हूँ। क्यों, इसलिए कि इमाम ज़माना 5 साल
की उम्र में इमामत मिलने वाली है। कहते हैं अल्लाह ने पहले ही तो ये इंतजाम किया था, बाद अंबिया को भी छोटी उम्र में नबूवत दी और बाद इमामों को भी छोटी उम्र में इमामत दी है। जैसे इमाम जवाद को ले लीजिए, कहते हैं कि छोटी उम्र, ये ज़मीना था, बताना चाह रहे थे जाते जाते, यानी सिर्फ इशारा है। तो ये इमाम हसन अख्तर एक जानता कि शायद चाहने वाले बच्चा समझकर आपकी तरफ ना आए। इमाम ने कहा देखो हमारे यहाँ उम्र नहीं देखी जाती है, सलाहियत देखी जाती है। दुनिया वाले बुजुर्गी को देखकर